یہ داستان ہے ایک ایسے لڑکے کی جو کہ اپنے سپنوں کے پیچھے بھاگتا ہوا ایک چرواہا بن گیا۔ دوستوں، میں ہوں علی عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج پوائنٹ۔ اس کا نام سینٹیاگو تھا۔ وہ اسپین کے شہر انڈلسیا میں رہتا تھا۔ اسے گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے کا بڑا شوق تھا، لیکن اس کا باپ اسے ایک پادری بنانا چاہتا تھا۔ تو ایک دن وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور اسے سمجھایا کہ میں ایک اچھا پادری نہیں بن سکتا، مجھے تو قدرت کے نظاروں سے پیار ہے، میں انہی کی گود میں کھیلنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے باپ سے اجازت طلب کی کہ وہ ایک طویل و عریض سفر پہ جانا چاہتا ہے۔ اس کے باپ نے اسے اجازت دے دی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سکے اور کچھ بھیڑ بکریاں بھی لے دی تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے۔ وہ اپنے باپ کی دی ہوئی ان تمام چیزوں کو لے کر طائفہ کی جانب نکل پڑتا ہے۔ طائفہ وہی جگہ ہے جہاں وہ پہلی بار اپنی محبت سے ملا تھا۔ وہ طائفہ کی جانب رواں دواں ہی تھا کہ ڈھلتا ہوا سورج اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ رات گزارنے کے لیے کسی جگہ کا بندوبست کرے۔ تھوڑی ہی دیر اور چلنے کے بعد اسے ایک چرچ نظر آیا۔ چرچ کافی سمحال تھا اور ویران پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بکریوں کو چرچ میں ڈالا اور خود باہر ایک سیکامور نامی درخت کے نیچے سو گیا۔ تاریک نیند میں اس نے ایک سپنا دیکھا تھا۔ سپنے میں اس نے دیکھا کہ اہرام مصر کے نیچے ایک بہت ہی بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ جب وہ صبح کو اٹھا تو اس پہ عجیب کیفیت طاری تھی۔ وہ سپنے کو لے کر پریشان سا دکھ رہا تھا۔ تو وہ ایک عورت کے پاس گیا جو کہ سپنوں کی تعبیر بتانے میں کافی نامور تھی۔ اس نے اس عورت کو اپنے خزانے کے سپنے کے بارے میں بتایا تو عورت نے کہا کہ میں تمہیں اس خزانے کا پتہ تو بتا دوں گی، لیکن اگر تم اس خزانے تک پہنچ گئے تو تمہیں مجھے اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ اس عورت نے کہا کہ اہرام مصر کے نیچے واقعی ایک خزانہ دفن ہے، تم جاؤ اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ سینٹیاگو نے حامی تو بھر لی، مگر دل ہی دل میں سوچا کہ یہ عورت اس سے فراڈ کر رہی ہے، اور یہ سوچ کر وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر اور چلنے کے بعد وہ ایک بازار میں پہنچتا ہے جہاں وہ آرام کی نیت سے ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی 2 پل ہی گزرے تھے کہ ایک ضعیف شخص اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سینٹیاگو سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام میلکی زیڈک ہے اور میں سالم کا راجا ہوں، مگر سینٹیاگو نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس بوڑھے شخص نے سینٹیاگو سے کہا کہ میں تمہیں اس خزانے تک پہنچنے میں مدد فراہم کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر سینٹیاگو کو خیال آیا کہ یہ ضرور اسی عورت ہی کی چال ہوگی، لیکن پھر اچانک اس بوڑھے شخص نے اس سینٹیاگو کے ماں باپ کے نام اور کچھ ایسے راز زمین پر لکھ ڈالے جو کہ اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائے تھے۔ یہ دیکھ کر سینٹیاگو اس کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ اس بوڑھے شخص نے سینٹیاگو سے کہا کہ میں تمہیں مدد تو کر دوں گا، مگر اس کے بدلے تمہیں مجھے اپنی بکریوں کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ لیکن سینٹیاگو نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اپنی بکریوں کا 10واں حصہ تو نہیں دے سکتا، لیکن البتہ میں تمہیں خزانے کا 10واں حصہ ضرور دے دوں گا۔ جس پر بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی ایسی چیز کے بدلے کیسے مدد فراہم کر دوں جو کہ ابھی تمہاری ہوئی ہی نہیں ہے۔ پھر بوڑھا شخص کہتا ہے کہ جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے تب وہ اپنے خوابوں اور منزل کے بارے میں بڑا پرجوش ہوتا ہے، لیکن جب اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے تب وہ منفی خیالات میں گھرنے لگتا ہے اور اپنی منزل تک رسائی اسے ناممکن لگنے لگتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اپنی منزل کے حصول کے لیے نکل پڑتا ہے تو ساری کائنات اسے اپنی منزل کو حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سن کر سینٹیاگو نے اس شخص کو اپنی بکریوں کا 10واں حصہ دے دیا اور باقی بکریاں بیچ دیں، جس سے کہ اسے کچھ رقم ملی اور وہ خزانے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ جاتے جاتے وہ بوڑھا شخص سینٹیاگو کو 2 پتھر بھی دے جاتا ہے، جس سے کہ وہ قدرتی اشاروں کو سمجھ سکے اور ممکنہ خطروں کو بھانپ لے۔ اب اس نے خزانے کی جانب سفر کا باقاعدہ آغاز کیا اور وہ افریقہ جانے والے ایک سمندری بیڑے میں سوار ہو گیا۔ ابھی وہ موروکو کے شہر تنجیر میں پہنچا تھا اور وہاں کچھ دن آرام کی نیت سے رک گیا۔ ابھی وہ تنجیر ہی میں تھا کہ کچھ گنڈوں نے اس پر حملہ کر دیا، اس کی ساری دولت چھین لی۔ سینٹیاگو بڑا ہی دل برداشتہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں یہاں پر آیا ہی کیوں، لیکن پھر اس نے سوچا کہ سفر کو یوں ہی چلانے میں بھلائی ہے، واپس جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مزید آگے بڑھا
उसे एक क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान दिखी। उस दुकान को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी कई दिनों से सफाई नहीं की गई। अपने पेट की भूख मिटाने की खातिर वो उस दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे तमाम क्रिस्टल्स को साफ करके चमका दूंगा, इसके बदले तुम मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। अब सैंटियागो बाकायदा अपने काम पे लग जाता है और जैसे ही वो कुछ क्रिस्टल को साफ करके वहाँ पे रखता है तो ऐन उसी वक्त एक ग्राहक आता है जिसे कि वो क्रिस्टल पसंद आ जाता है और वो उसे खरीद लेता है। दुकानदार ये देखकर सैंटियागो को मुसलसल अपनी दुकान पे रखने का फैसला करता है और अब उसे बाकायदा तनख्वाह देना भी शुरू कर देता है। सैंटियागो ने उस दुकान पे 6 माह के लिए काम किया, जिस दौरान के उस दुकानदार की सेल्स में काफी गुना इजाफा हो चुका था। अब सैंटियागो को पता चला कि मोरक्को से मिस्र जाने के लिए एक काफिला निकल रहा है। उसने दुकानदार से इजाजत तलब की, वो उस काफिले में शामिल हो गया। काफिले में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई। अंग्रेज ने उसे बताया कि मैं एक ऐसे अल्केमिस्ट की तलाश में हूँ जो कि लोहे और दूसरी धातुओं को सोने में बदल देता है। वो काफिला मिस्र की जानिब रवां दवा ही था कि तब एक अफवाह उड़ गई कि 2 कबाइल की आपस में जंग छिड़ गई है। ये सुनकर काफिले के सरदार ने फैसला किया कि पास ही मौजूद एक छोटे से कस्बे में कयाम किया जाए। सैंटियागो और अंग्रेज लड़का एक कुएं के पास पहुंचते हैं जहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। सैंटियागो की नजर जैसे ही वहां मौजूद फातिमा नामी लड़की के ऊपर पड़ती है तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और वो अब से उस कुएं पर रोजाना आने लगता है। फातिमा ने उनको अल्केमिस्ट का पता भी बताया था। एक दिन अंग्रेज लड़का और सैंटियागो अल्केमिस्ट से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अल्केमिस्ट ने अंग्रेज लड़के से कहा, क्या कभी तुमने खुद कोशिश की है लोहे को सोने में बदलने की? अंग्रेज लड़के ने जवाब दिया, नहीं। जिस पर अल्केमिस्ट ने उसे एक बार खुद कोशिश करने का मशवरा देकर वापस भेज दिया। सैंटियागो को इस कस्बे में रहते हुए काफी अरसा गुजर जाता है, जिससे कि वो सहराई जबान को समझने का तजुर्बा भी हासिल कर लेता है। तो एक दिन वो 2 बाजों को आपस में लड़ते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ हमला होने वाला है। तो वो इस कस्बे के सरदार के पास जाकर उसे खबरदार कर लेता है। कस्बे का सरदार सैंटियागो को कहता है कि हम तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन अगर हमला न हुआ तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और अगले दिन सैंटियागो की बात सच साबित हो गई थी। कस्बे पर वाकई हमला हुआ था, लेकिन पहले ही खबरदार रहने के बायस वो हमलावरों को शिकस्त दे पाए थे। सैंटियागो की दानिशमंदी को भांप कर कस्बे के सरदार ने उसे सोने के सिक्के तोहफे में दिए और कस्बे का काउंसलर भी बना डाला। सैंटियागो ने सोचा जब उसके पास नौकरी भी है और छोकरी भी, क्यों न वो फातिमा से शादी करके यहीं पे ठहर जाए। लेकिन फातिमा ने उससे कहा कि सच्ची मोहब्बत कभी तुम्हें अपने सपनों से दूर नहीं कर सकती। तुम अपने सपनों की तलाश में जाओ और मेरी फिक्र न करना, मैं तो सहराई औरत हूँ, मुझे इंतजार करने की आदत है। इसी रात सैंटियागो अल्केमिस्ट से भी मिलता है, उसे अपनी कहानी और खजाने के बारे में आगाह करता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को अपने सपनों को पूरा करने की हिदायत करता है और ये भी कहता है कि जितना हो सका मैं तुम्हारे सफर में मदद जरूर करूंगा। अगले दिन अल्केमिस्ट और सैंटियागो मिस्र की जानिब रवाना हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें कुछ कबीले वाले जासूस समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं और सैंटियागो की सारी दौलत को जब्त कर लिया जाता है। जिस पर अल्केमिस्ट कबीले वालों को धमकी देते हुए कहता है कि ये लड़का जादूगर है, अगर तुमने हमें रिहा न किया तो फिर ये लड़का खुद को हवा में बदलकर तुम सबको उड़ा ले जाएगा। जिस पर पूरा कबीला कह लगाना शुरू कर देता है और कबीले का सरदार इनको 3 दिन की मोहलत देता है और कहता है कि अगर तुमने 3 दिन में अपनी बात को न मनवाया तो फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अब उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर सैंटियागो अल्केमिस्ट से आग बगोला होकर कहता है कि तुमने तो हमें मरवा ही दिया। वहाँ पर अल्केमिस्ट सैंटियागो को हिदायत करता है कि जिंदगी और मौत के खौफ को तर्क कर दो और कुदरत के साथ हम आन हो जाओ। 2 दिन की मुसलसल कोशिश के बाद नाकामी का सदमा लिए वो अपनी मौत को लटकते हुए देख रहा था, लेकिन तीसरे दिन उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी और वो एक तूफान लाने में कामयाब हो गया। ये देखकर कबीले वालों ने उन्हें रिहा कर दिया। अब सैंटियागो और अल्केमिस्ट वहाँ से निकलकर एक मोनेस्ट्री में पहुँचते हैं। वहाँ अल्केमिस्ट एक तांबे की राड को सोने में बदलता है और उसे 4 हिस्सों में तकसीम कर देता है
जिसमें से एक वो अपने पास रखता है, एक सैंटियागो को देता है, एक वहाँ मौजूद पादरी को देता है, जबकि चौथा हिस्सा वो उस पादरी के पास अमानत के तौर पे रखता है कि ये लड़का जब सफर से वापस आए तो इसे दे देना। अब यहाँ से अल्केमिस्ट सैंटियागो को खैराबाद कहता है और आगे का सफर खुद अकेला तय करने को बोलता है। सैंटियागो अहराम मिस्र तक तो पहुंच जाता है और वहां पर खुदाई करना भी शुरू कर देता है, लेकिन खुदाई के दौरान वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो इसके पास मौजूद सोने का टुकड़ा इससे छीन लेते हैं और सोचते हैं कि जरूर इसने और सोना भी यहाँ पर छुपाया हुआ होगा। वो सैंटियागो पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। सैंटियागो अपनी कहानी को बड़बड़ाने लग जाता है। यह सुनकर उन गुंडों का सरदार कहता है कि ये तो पागल लड़का लगता है जो कि अपने सपनों के पीछे इस तरह भाग रहा है। सपना तो मुझे भी आया था कि स्पेन में तारिफा नामी गांव में एक सिकामोर नामी दरख्त है जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है, लेकिन मैं इसकी तरह पागल थोड़ी ही था जो मैं अपने सपने के पीछे इस तरह भागता। अब सैंटियागो हकीकत को जानता है और उसे पता चलता है कि असल खजाना तो उस दरख्त के नीचे छुपा हुआ था जहाँ पे वो रात गुजार के आया था। वो वापस तारिफा जाता है और सिकामोर नामी दरख्त के नीचे से खजाना निकाल लेता है और अपने वादे के मुताबिक वो अपने खजाने का 10वां हिस्सा उस औरत को दे देता है जिसने इसके ख्वाब की ताबीर की थी और अब अपनी बची हुई जिंदगी फातिमा के साथ गुजारता है। दोस्तों, यहाँ हमारी कहानी तो अपने अंजाम को पहुंची, लेकिन इस कहानी का मकसद बताना अभी बाकी है। दोस्तों, सैंटियागो का असल मकसद तो घूमना था। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपका असल खजाना तो आप ही के अंदर छुपा हुआ है। मान लीजिए कि आप लोहा हैं, तो अब आपको सोने में तब्दील होना पड़ेगा। तो आपको सोने में तब्दील करने के लिए आपका मुआशरा बड़ा किरदार अदा करता है। अगर आपका मुआशरा आप में से नुक्स निकालना बंद कर दे तो आप खुद को तब्दील नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा सबक ये भी है कि इंसान के सफर में चाहे कितनी भी मुश्किलातें क्यों न हो, उसे कभी अपना सफर तर्क नहीं करना चाहिए और अपने मकासद के पीछे इस तरह भागे कि आपको आपका सफर एडवेंचरस लगने लगे। ऐसा हरगिज न हो कि आप बीच ही में थक जाएं। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप में एहसास पैदा करने में कामयाब गई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली